सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भाई। अर्जन काया पट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली तीड़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी। दाल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु परोपकारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हास्यों देवे जोर, चरण कहों पकों सुबरसना। विध है पान कोर, कोई जन हास्यों देवे जोर। चरण कहों पकों सुबरसना। विध है प्राण कोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस में मगन होत कृपा ते, महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवों तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंदन शोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवों तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंदन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हास्यों देवै जोर, चरण कहों बकों सुपरसना। जिद है प्राण पकोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु रूप खालसा जी, प्यारे सत संगी जनों, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ 15 ਮਈ 2 ਜੇਠ, ਅੱਜ ਧੰਨ 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 ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ वो अज बीतिया है। शाम के समय आप जी दे नाल थोड़ी जी उस बारे
ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਈਰਖਾਲੂ ਸੁਭਾਅ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਵਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਖਾਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਰਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
हौली हौली घटता जा रहा है, वो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ हो गए। अहमद सरहंदी, शेखप्रीत बुखारी ते जेड़े सरवरीए सन, जेड़े पीरखाने के पुजारी सन, कबरां पूजने वाले, उधर जो कि जहांगीर का पुत्र सी खुसरो, जिसने बगावत कर दी अपने पिता के खिलाफ कि राजगद्दी मैनू चाहिए। क्यों? जहांगीर जिहड़ा सी इहदी नीति ठीक नहीं सी, गरीबां उपर ते बड़ा ही जुल्म करता सी। कि किसी नूं राजा होने के नाते राजे के फर्ज होंदे अपने फर्ज नहीं सी संभालता, दुनिया के नाल ईर्खा करता सी, जातिवाद के आधार से किवें ला लीए। इस करके जदों अकबर ने अपने पुत्र खुसरो नूं गद्दी देनी चाहिए, राजगद्दी, राज का वारस खुसरो नूं बनाउणा चाहया, उदों जहांगीर ने की कीता, झूठा विखावा करके बड़ा ही दयालु सुभाव बना के अपने पिता की सेवा करके धोखे में आके जिहड़ी राजगद्दी सी उस पासों लै रही। ते जिहड़ा खुसरो सी, खुसरो की अपने दादे अकबर के नाल बड़ी ही बनती सी, ते अकबर भी यही चाहता सी कि जिहड़ी राजगद्दी वो खुसरो नूं दित्ती जावे। ते जदों खुसरो नूं इस गल का पता लगा, उन्हें दिल्ली में बगावत कर दी। खुसरो की बगावत असीं सारे जानते हैं। उस दे दौरान जिहड़ा शेख बुखारी, अहमद सरहंदी ते ये सरवरी सन, इन्हां ने साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ एक साजिश रची, जिहदे विच चंदू भी भागीदार सी। क्यों? उसकी लड़की के रिश्ते तो ना करन दा इस विच कोई ज्यादा रोल नहीं सी, जिन्ना के रोल साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत दे विच ये सिख सरवरीए सन, जेड़े कबरां पूजते सन, उन्होंने जिन्नी की ईर्खा निभाई, जिन्नी प्रिथी चंद ने ईर्खा निभाई, वो उन्होंने ज्यादा अहमियत रखती है, ज्यादा रोल निभाया उन्होंने। जदों दिल्ली तो खुसरो पंजाब आया, गोइंदवाल तो उसने दरिया पार किया, इन्होंने एक झूठी जी घाट करी, कहानी करी, ते जहांगीर नूं ये गल दसी कि जो हिंदुओं का पीर है गुरु अर्जन देव जी, हिंदुओं का पीर कहते सन, जो कि गोइंदवाल रहिंदा है। जदों खुसरो ने उतों दरिया पार किया ते रात वो गोइंदवाल गुरु अर्जन देव जी के कोल ठहरिया। गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो नूं तिलक लगाया, उसकी मदद की ते आशीर्वाद दिता कि राजगद्दी का वारस तू ही बनेगा। ते उधर जहांगीर ने की कहा सी कि जेड़ा भी खुसरो नूं पनाह देवेगा, दी सहायता करेगा, उसनूं बड़ा ही कष्ट दे के मार दिता जाएगा। जदों जहांगीर नूं इस गल का पता लगा, उदों उसने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक सदा भेजा कि जां ते लाहौर खुद पेश हो जाओ, जां तुहानूं गिरफ्तार करांगे। पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी कहते कि असीं खुद ही चल के आवांगे। तो शहीदां दे सरताज तां ही मन्निया जांदा है ना, खुद चल के गए सन। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी, जिन्हां दे के बेटे साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, जिन्हां दा जन्म 9 जून 1595 ईस्वी नूं अमृतसर तो 4 मील की दूरी पिंड बडाली, जिन्होंने गुरु की बडाली भी कहा जाता है, उत्थे श्री गुरु अर्जन देव जी के कार माता गंगा जी की कुख तो आप जी ने जन्म लिया। उस समय साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी जेड़े सन,
इन्हां ने विद्या, अखरी विद्या ते शस्त्र विद्या धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी के छत्र छाया हेठ भाई जेठा जी को, जिहड़े कि युद्ध विच बड़े ही निपुण सन, उन्हां पासों नेजेबाजी, तीर अंदाजी, निशानेबाजी, तलवार अते बंदूक चलाउण दी सिक्ख्या आप जी ने भाई जेठा जी के पासों हासिल की। ते घोड़सवारी की गल सी जिहड़ी ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव जी ने भाई गंगा सहगल जी पासों घोड़सवारी सीखी। जिस समय धंन धंन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1606 ईस्वी लाहौर जाना सी, उस जहांगीर के बुलावे ते धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने जो गुरगद्दी तिलक सी वो अपने इकलौते वारस साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने लगाया, गुरगद्दी की बख्शिश की। जिस दे दौरान जदों धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के मत्थे ते गुरगद्दी का तिलक लगाया, एक तलवार पहनाई तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी कहने लगे एक तलवार होर पहन दो। उन्हें एक तलवार होर पहना दी। बाबा बुढ़ा साहब जी पूछने लगे कि गुरु साहब जी की दो तलवार, एक तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी कहते एक मीरी दी एक पीरी। क्यों पीरी दे नाल जिहड़ी मीरी है जरूरी है ते मीरी दे नाल पीरी भी जरूरी है। जे अंदरला आनंद मानना है तो ਉਹਦੇ वास्ते पीरी जरूरी है, पीर होना जरूरी है, भगती करनी जरूरी है। ते जे बाहर मजलूमां दी रखिया वास्ते जां अपने किसी भी सहायता वास्ते जुर्म का टाकरा करने वास्ते जिहड़ी ਉਹ पीरी भी जरूरी है, ਉਹਦੇ वास्ते सता भी जरूरी है। जिन्नी देर सता नहीं उन्नी देर कोई धर्म कायम नहीं रह सकता। जिवें कि इतिहास असीं सारे जानते हैं, जिहड़े धर्मां दे विच जां जिथे भी कमजोर सन, जिन्हां नूं शस्त्र विद्या नहीं सी आउंदी, जिन्हां दे शरीर बालहीन सन, जिन्हां विच बल नहीं सी, वो कली भगती के कारण दब के रह गए, उन्हां कोल सता हासिल नहीं की। इस वास्ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने दो तलवारां पहनाइयां ते ये क्या कि हुण तुसीं जुर्म का टाकरा करने वास्ते तैयार बर तैयार योद्धियां की फौज तैयार करो। जिस वास्ते साहिबां ने बख्शिश की 5 प्याले 5 पीर, 6ठम पीर बैठा गुर भारी। 5 पीर तो भाव के 5 गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी, साहिब श्री गुरु अंगद देव जी, साहिब श्री गुरु अमरदास जी, साहिब श्री रामदास ते धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी। ये 5 प्याले सन ते 5 पीर केड़े? सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज। भाव के 7 गुणा का बड़ा अभ्यास किया। 6वां गुरु, इस करके उसनूं 6वें गुरु नूं पीर, 6वां पीर बनाया गया गुरु हरगोबिंद। भारी गुरु इस करके क्या गया क्योंकि वह गद्दी उत्ते बैठते सन तो 2 तलवारां पहनते सन ते बड़े ही योद्धे सन, बहुत वड्डे योद्धे सन। तीर अंदाजी विच, तलवार चलाउण विच, बंदूक चलाउण विच, निशानेबाजी विच, घोड़सवारी विच साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी जिहड़े सन बड़े ही निपुण सन। अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी। गुरु अर्जन जी ने ही अपनी काया पलट के हरगोबिंद की मूर्त जिहड़ी वो बना दी, सवार दी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। हुण सोडियां दी पीढ़ी अगों तुर पई ते वारो वारी अपना रूप दसन लगे। दार भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। ये वीर गुरु मलेशिया के दलां दा तोड़नहार वड्डा जोधा ते वड्डा परोपकारी हो उठिया। पुछण सिख अरदास कर, फिर सिखां ने अरदास करके पुछया 6 महलां तक दर्श निहारी।
कि हुण सिख अरदास करके पुछण लगे, हे दीन दयाल 6 महलों तक तो दर्शन होए हन, अगों किन्ने होणगे? ते धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जवाब देण लगे, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। अगम अगोचर अर्थात कि मन, अगम अगोचर बाणी उस बाणी नाल जिन्हां दा मन जुड़िया जिहदा कोई अंत नहीं पा सकता, अर्थात मन बाणी तो परे। अगम अगोचर जिहड़ी पहुंच तो परे बाणी ओदी गल करदे हैं। सतगुरु जी ने ये मुख वाक दसिया, ये गल कही, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। संसारी कि संसार के लोगों ये गल सुनो, कालयुग पीढ़ी सोडियां निश्चल नीम उसारी। कालयुग पीढ़ी सोडियां निश्चल नीम उसार खलारी। कालयुग विच सोडियां दी पीढ़ी दी नीम अटल उसार के खड़ी की गई है। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग जुग तो भाव है, भाव के 2 ते 2 4, परंतु होर अवतार जिन्ने के भाव के सोडी पीढ़ी विचों पातशाह स्थापित किए जाएंगे। 2 दूनी 4 वाली गल कि 4 साडी पीढ़ी विचों होर गुरु जिहड़े हन बनाए जाणगे। जदों धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह एक अनोखी जी कार हुई कि एक संत की पीर की गद्दी चलती होंगी तो संत ने 2 तलवारां पहन लईआं। बड़ी चर्चा हो गई। जो बड़ी चर्चा चली, बड़ी चर्चा चली कि संत ने तलवार पहन ली है, संत ने तलवार पहन ली है। उदों धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुजरात के पासों लंघ रहे सन, लंघे जा रहे सन। उत्थे एक फकीर ने आप दियां दे उत्ते एक तर्क खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे नाल आप जी दे महल सारा परिवार ते जो भी लाल लश्कर सारा जी आप जी दे नाल जा रहा सी। फकीर मिल गया, फकीर ने ये तर्क खड़ी कर दी। वो कहने लगा, दौलत की ते फकीरी की, स्त्री की ते फकीरी की, पुत्रां दी होंद की ते संत की, हिंदू की ते फकीर की। जिस दे जवाब में धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे कि दौलत जिहड़ा है गुजरान है, गुजारा करने वास्ते दौलत जरूरी है, दौलत भी कमानी पवेगी। दौलत गुजरान, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। जिसकी कि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ये गवाही मिलती है। गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ये उपदेश करते हैं, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण के। जिहड़ा फकीर हुंदा है ना वो हिंदू हुंदा है ते ना वो मुसलमान हुंदा है, वो ते राम दे गुण गाउण विच मस्त हुंदा है। अपनी सारी जिहड़ा जीवन है, जिहड़े प्राण हैं, जिहड़ा शरीर है, वो सारा रब की भगती विच निशावर कर दिंदा है। जातिवाद नाल कोई संबंध नहीं हुंदा। सो गुरगद्दी ते बैठ करके धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिवें कि असीं समझते हैं बंदी छोड़ आप जी नूं नाम मिलिया। बंदी छोड़ कितों जदों के जे इतिहास में पढ़िए तो पता लगता है कि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जदों गुरगद्दी पर बैठे तो आप जी ने की क्या सिखां ये उपदेश दिता कि हुण सानूं भेटा विच की चाहिदा है। चंगे नौजवान, चंगे घोड़े, चंगे शस्त्र, ये हुण भेटा विच लैके आओ तां जो असीं इस जुल्म का टाकरा करने वास्ते जिहड़ा कि मजलूमां उपर हो रहा है, इस जुल्म का टाकरा करने वास्ते एक फौज तैयार करी। जदों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास नौजवान आने शुरू हो गए तो आप जी ने की उपदेश दिता कि शस्त्र विद्या सीखो, घोड़सवारी सीखो, बाणी बाणे नाल जुड़ जाओ, कुश्तियां करो, शिकार खेलो,
ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। जिस की खबर जहांगीर के कोल फिर पहुंचाई गई कि धाता साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने पिता की शहादत का बदला लैण वास्ते फौज तैयार कर रहे हैं। तो फिर उस जहांगीर ने की चाल चली, वो कहने लगा साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कि गुरु साहिब जी तुसीं पीर हो, मेरे को आओ, मैं बीमार हाँ, मेरे महल विच रह के कुछ समा भजन बंदगी करो, मेरी तंदुरुस्ती वास्ते अरदास करो, ते आदमी का जिन्ना भी खर्चा होगा सारा सरकारी खजाने विचों कीता जाएगा। आप जी बड़े ऐश आराम नाल उत्थे रखा जाएगा, कोई तंगी नहीं की जाएगी। पर जो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सानू जाने जान सन, वो चले गए। जो पहुंचे ने ग्वालियर ते उत्थे जाके की कीता गया, आप जी नूं एक बार जहांगीर दे नाल मिला के दोबारा बंदी खाने विच कैद कर दिता गया ग्वालियर के किले विच, जिहड़ा कि उस समय बड़ा ही भयानक मन्निया जाता सी कि जो उस किले विच कैद कर दिता जाता है उसनूं जिंदा वापस नहीं करते। पर उत्थे जाके साहिब श्री गुरु अर्जन देव गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की कीता, अमृत वेले उठना, गुरबाणी के जाप करने, नाम सिमरन में लगे रहना सारा दिन, नाल दे जिन्ने 52 राजे थे हिंदू 52 राजे जिहड़े कैद सन, उन्होंने भी अपने नाल नाल गुरबाणी नाल जोड़ लिया, नाम सिमरन में जोड़िया। शाम के समय सौदा रहरा आसी का जाप करना, अरदास करनी, उस तो बाद कीर्तन सोले के जाप होने। इस तरह बड़ा जिहड़ा किले का माहौल सी आनंदमई जिहा बन गया। फिर जदों भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने उपराले के सदका संगतां दे सिख संगतां दे उपराले के सदका जहांगीर ने रिहा करने की गल सोची कि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने रिहा कर दिता जाए। उस किले दे विच एक लहर की खुशी की लहर दौड़ गई कि कोई तो है जिहड़ा जिंदा इस किले तो वापस चलिया है। पर जो हिंदू राजे सन थोड़े ही समय में नाराज हो गए, कहते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तुसीं ते इत्थे बड़ा आनंदमई ढंग नाल रह रहे सी, सानू आनंद नाल रहना दस्सिया, ते तुहाडे तो बिना साडा कौन वारस है, सानू कौन पानी नाल जोड़ेगा। ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहन लगे कि कोई गल नहीं, असीं तुहानू भी लैके ही जावांगे। जदों जहांगीर ने कहा कि तुहानू किले तो रिहा कर दिता जाएगा, तो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे कले नहीं जाने, इन्हां नूं रिहा करो। जहांगीर कहने लगा ठीक है, जिहड़ा तुहाडा पल्ला फड़ के निकल जाए निकल सकता है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 52 कलियां वाला चोड़ा सुनाया, वो एक एक कली फड़ के हिंदू राजे जिहड़े सन 52 के 52 उस ग्वालियर के किले विचों रिहा हो गए, जिस कारण साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बंदी छोड़ का नाम भी दिता जाता है। सो ये सी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन बारे आप जी दे नाल साझ जो साहिबां ने हुक्म बख्शिश किया उस पर दर्शी झाड़ पाइए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दसां जीवां पर अज बख्शिश कर रहे हैं। जैतसरी राग के अंदर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी बख्शिश करते हैं कि कोई इहो जिहा जीव होवे जिहड़ा मैनूं हरि दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जोड़ देवे, मैं उहदे चरण पकड़ लवां, अपनी रसना तो उस वास्ते उसकी प्रशंसा दे शब्द बोलां, उस वास्ते अपने प्राण भी भेटा दे रूप से दे देवां। जैतसरी महला पंजवां कोई जन हर स्यों देवे जोर, चरण कहो गहों तो भाव है पकड़ना, बकों बोला सो बरसना, अपनी जुबान तो मिठे बोल बोला, दीजे प्राण अकोर अकोर कहते ने भेटा, मैं अपने प्राण भी वास्ते भेटा के रूप में दे देवां। रहाओ रहाओ वाली तुक तो अगे साहिब बख्शिश करते हैं कि ये हालात कदों बनते हैं। मन तन निर्मल करत प्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। भाव कि मन भी निर्मल कर, तन भी विकारां तो रहत कर,
ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੇ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਕਮ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਤੋਰ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੀ ਪੂਰ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਪੈ ਪਦ ਤਾਣ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ। हे प्रभु मैं तेरी मैं नानक, हे प्रभु मैं नानक भाव के नानक दी जोत, मैं तेरी शरण आया हाँ, मैनू यह बख्शिश कर। निरभैता वाली अवस्था जिहड़ी पदवी है, मैनू अभै पद दान, मैनू निरभैता वाली पदवी जिहड़ी है वह बख्शिश कर दे, वो दे दिओ। मैनू दान दे विच जिहड़ी पदवी देनी है ये दान दिओ कि मेरे अंदरों सबना दा भै मुक जाए, मैं निरभै हो जावां ते आप जी दा नाम सिमरन करां ते मेरे मायक बंधन जिन्ने हैं संसार के बंधन, इन्हां तो मैनू मुक्त कर दिओ। करो किरपा, मेरे ऊपर किरपा करके अपने चरण कमलों का उतासरा दिओ, तां जो मैनू संसार उपर किसी का कोई डर ना रह जाए, तो मैं निरभै हो के सच्ची किरत कर सकां, सच्चा नाम जप सकां, तो आप जी के चरण कमलों में सदा ही जुड़िया रवां। सो करो किरपा, यही अरदास करिए कि साहिब जी सानू भी निरभैता वाली अवस्था ते नामदान झोली में पाओ, तां जो असीं भी चंगे कर्म करके अपने जीवन का लाहा खट सकीए। सानू भी समर्थ बख्शिश कर दिओ, किरपा करो, गलतियां दी क्षमा बख्शदे होए फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।